So prior to this, we have completed 6 practicals. Is it right? How many practicals we have completed? Prior to this practical, how many practicals we have completed? Anybody can have idea? हेलो, क्या आप लोग सुन रहे हैं? सर 5 हो गए। 5 हो गए या ज्यादा हुए थे? So I think we have completed 5 practicals. Yes. So study of floral symmetry we have completed. Then study and work out the differences in dicot and monocot flower we have completed. Then third one, that is study of variation in stamen and carpel we have completed. To study the placentation types in various taxa we have completed. To study the floral adaptation in pollination also we have completed. And now today we are going to complete another practical which is related to study anatomical features of various taxa. शायद in theory also in the previous lecture we have almost completed some part related to anatomy in relation to taxonomy. Is it right? Yes, sir. Yes, Huh. sir. So today also we are going to complete this part, that is to study the anatomical features of various taxa. Now, as far as anatomy considered, all of you are aware that anatomy includes internal arrangement of different parts of a plant. Then anybody of you can tell me what are the different important fundamental organs of the plant? Hello? Which are the fundamental organs of a plant? Harshada? Gayatri? Yes, sir. हाँ बताओ, which are the fundamental organs of the plant? अर्चना बताओ. अच्छा चलो, which are the fundamental parts of the plant? Hello. Sir, calyx, corolla, androecium, gynoecium. Whether they are parts of, whether they are, yes, root, leaf, and stem and flower. These are fundamental parts. To be more precise, stem, root, and leaf. These are the fundamental parts. And in addition to that, for reproduction purpose, flower is formed, and whatever Naina has told, that is calyx, corolla, androecium, gynoecium. These are the fundamental parts of a flower. Okay, so plants have these different parts. All these organs are made up of various types of tissue system. You get it? Hello? Yes, sir. Yes, sir. All organs of the plant are made up of fundamental tissue system. Just a minute. So all these different parts which are made up of various different types of tissue systems. Which are the different tissue systems you have studied earlier? हेलो, आपने इसके पहले कौन से टिश्यू सिस्टम पढ़े हैं? एनीबॉडी? अर्शदा? सर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. I am asking about tissue system and what are the different tissue systems you have studied? You are telling me about the tissue. I want about the tissue system. Whether you have studied any of the tissue system or not? क्या इसके पहले आपने कोई टिश्यू सिस्टम पढ़ी है? So vascular tissue. Vascular tissue, then Ground tissue. ground tissue, then Dermal tissue. dermal tissue, and anything more? So remember, there are different types of tissue system, and these tissue systems are like epidermal tissue system, mechanical tissue system, then vascular tissue system, and so on. क्या आपने इसके पहले epidermal tissue system पढ़ी है? हेलो,
क्या आपने इसके पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ी है? No, sir. पढ़ी है ना? Different types of trichomes, stomata, outgrowths, all these are part and parcel of a tissue system. That is epidermal tissue system. Then vascular tissue system, which shows presence of different vascular bundles. That is xylem, phloem, and cambium. In most of higher plants, specifically in dicot, they present and they are part and parcel of a vascular tissue system. Then besides that, you are known with lacticeferous system. Lacticeferous system के बारे में आइडिया है आपको? That is a latex or liquid which is oozing from the different plant parts. So lacticeferous tissue system is also present. उसके अलावा secretory tissue system या lacticeferous tissue system, उसके बाद epidermal tissue system, vascular tissue system. So these are the different types of tissue system. Which is the fundamental unit of a plant body? Hello? Which is the fundamental unit of plant body? Or plant body is made up of which unit? किसी को भी पता नहीं है प्लांट बॉडी किस चीज की बनती है? फंडामेंटल यूनिट किस चीज को बनते हैं बोलते हैं? Cells. Yes. Plant's body of a plant is made up of cell. Then there are different types of cells. For example, जैसे आपने अभी बताया था parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. These are the simple cells or simple tissues. And besides that, xylem, phloem, these are the complex tissues. So as far as cell considered, it is known as a fundamental unit of a body of a plant. So cell, whenever one or more different types of cells comes together for a common function, then the structure formed is known as a tissue. Is it right? Hello? Yes, sir. One or a different type of a tissue, type of a cell, when comes together to perform a common function or sometimes different function, then it is known as a tissue. Then whenever different type or types of tissue comes together to perform a common function, then it is known as, जब अलग अलग different type के tissue इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? Anybody? Organ. No, they form the tissue system. So they form the tissue system. From different types of tissue system, organ is formed. From the organ, organization is formed, and from such an organization, organism is formed. You get it? Yes, चलो sir. चलो अगर हमने अपने कॉलेज में देखे तो अपने कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, सभी डिपार्टमेंट मिलके इंस्टीट्यूट या कॉलेज बनता है. नहीं तो कुछ forums है, फॉर एग्जांपल एनसीसी होगा, एनएसएस होगा, एलएसीएफ होगा. दीज आर द डिफरेंट फोरम्स व्हिच आर वर्किंग फॉर यू. या अदरवाइज लाइब्रेरी होगा, फिजिकल एजुकेशन होगा. सो ऑल दीज आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड कलेक्टिवली यू कॉल इट एज अ इंस्टीट्यूट. क्या आप जब इंस्टीट्यूट या कॉलेज बोलते हैं तो सिर्फ लाइब्रेरी आपके ध्यान में आती है? क्या सिर्फ क्लासरूम ध्यान में आती है? क्या सिर्फ कोई ऑफिस ध्यान में आता है? एनीथिंग? आप जब कॉलेज या इंस्टीट्यूट बोलते हैं तो ये सभी चीजें आपके ध्यान में आती है. सो दीज आर पार्ट एंड पार्सल. वैसे ही मैंने अभी बताया कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स whenever comes together they form the tissue. Whenever different types of tissues perform a common function, they are working as a tissue system. Variety of different types of tissue systems are available. जैसे अगर हायर ऑर्गेनिज्म ने अपने सिस्टम्स देखे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अ डिफरेंट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ डिफरेंट. फॉर एग्जांपल you can take any system. For example, circulatory system is different. You can say that lymphatic system is different, digestive system is different. You get it? Yes, sir. Yes, sir. So whenever all these different types of systems working together, they are forming a organ and organism. And in this way, you are now well known with the different tissues as well as the tissue system, and indirectly with the cell.
But here in anatomy, we are going to observe the different organs of a plant and what type of tissue they show presence. For example, you are better known, we have 5 different sense organs. Which are the 5 important sense organs in case of a human being? Hello? Sir, skin, nose, eyes, and tongue. Skin, nose, eyes, tongue. What is Ear. their ear? So what are their functions? स्किन से आपको टच का सेंस समझता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिलता है. इज इट राइट? Yes, sir. यस. Yes, उसके sir. बाद ईयर से आपको बाहर का ध्वनि या साउंड सुनाई देता है. उसके बाद आईज के वजह से आपको विजन मिलता है, यू कैन सी इन योर सराउंडिंग. उसके बाद आपने टंग बताया, दैट इज यू हैव आइडिया रिगार्डिंग द टेस्ट. So in this way, these different sense organs are important. Very likely to this in case of a plant, the organs such as root, stem, leaf, flower, these different organs play very important or vital role in various activities of a plant life. So all the organs that are made up of tissue system, these are the groups of different types of tissue, but perform only one function. The tissue tissues constitute the tissue system are derived from sometime meristematic tissue in case of a plant. Have you gone through meristematic tissue? क्या आपने meristematic tissue के बारे में सुना है? Yes. Yes, sir. So in case of a plant, growth occur through meristematic tissue, and these meristematic tissue only occur at the apices of the root or the apices of the shoot or at the apices of leaf. And that's why growth is restricted in case of a plant. It is restricted to apical parts only. So these are situated only at the few places called as a meristem. There are various types of meristem. One of these is shoot apical meristem, which is responsible for growth of a plant in length and formation of primary and permanent tissues. शायद आपको पता होगा, हम लोग हमेशा बात करते हैं प्राइमरी टिश्यू एंड सेकेंडरी टिश्यू, और tissue which is formed after secondary growth. Another type of meristematic tissue is a cambium, which is very important in case of a plant, which produces secondary or permanent tissues which increases the girth of a plant. So the tissues are classified into 2 major groups, that is simple tissue and complex tissues. So जैसे आप में से किसी ने शुरू में बताया था, that is parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, तो immediately मैंने बताया कि these are the simple tissues, and compound tissues are like, or complex tissues are like, that is your xylem and phloem. These are the complex tissues. So tissues are classified into 2 major groups, simple tissues and complex tissues. The simple tissues are made up of only one type, while complex tissues are made up of more than one type. सिंपल टिश्यू के एग्जांपल मैंने बताया पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्लेरेंकाइमा. And complex tissue include xylem and phloem. Xylem consists of different types of cells, and these cells are such as tracheids, vessels, xylem tracheids, vessels, xylem fibers, and xylem parenchyma. So 5 different types of tissues observed in case of the xylem, जिसको आप xylem बोलते हैं, which is made up of 5 different types of tissues. और वो 5 टाइप मैंने कौन से बताए? That is, it consists of tracheids, vessels, xylem, that is xylem fiber, xylem parenchyma, and so xylem is made up of, xylem is called as a complex tissue. The phloem is composed of sieve tube, sieve plates, companion cells, phloem fibers, and phloem parenchyma. So it is again consists of 5 different types of cells, and hence it is called as a permanent, it is called as a complex tissue. तो क्या आपके ध्यान में आया? पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्लेरेंकाइमा, ये सिंपल टिश्यू, और xylem and phloem, these are the complex tissues. So these are the important in case of a plant. So these tissues are present in case of a plant. You get it? Hello? Yes, sir. So group up some of these different types of tissues together to perform a common function and are called as a tissue system. जैसे मैंने शुरू में बताया था, group of different types of tissues
whenever performing the common function, they are known as a tissue system. So there are three different types of tissue system. First one, epidermal tissue system, because हम यहाँ plants के बारे में देख रहे हैं. So पहली tissue system है epidermal tissue system. That is system which is present on the epidermis or outermost layer of the cell. Then another is a ground tissue. आप में से किसी ने शुरू में बताया था, और it is also known as a fundamental tissue. And third tissue system in case of important tissue system in case of a plant is vascular tissue system. So each plant organ shows a typical organization of these three tissue systems. So these are so characteristic that it is possible to distinguish one organ from the other. क्या आपके ध्यान में आ रहा है? Why one organ is different from other organ? Because these organs are performing different functions. ये organ different function carry कर रहे हैं, और they are made up of different types of tissue. Each plant organ shows a typical organization of these three tissue systems. These are characteristics that is possible to distinguish one organ from the other. Organ कौन कौन से है प्लांट में? हेलो, प्लांट में ऑर्गन कौन कौन से है? हर्षदा, प्लांट में ऑर्गन कौन कौन से है? Sir, leaf. Yes, root, stem and leaf. These are the important organs. And next important organ is a flower. So these different organs are made up of different types of tissue and tissue systems. Primary organization of plant is due to activity of shoot apical organization. Primary activity जो है वो किससे होती है? Shoot apical organization. And general structure pattern of organ remains basically similar in all types of plants. All types of plants में basic structure is similar. In dipart, the stem and root both grow once again after the plant acquire प्राइमरी स्ट्रक्चर. जैसे ही प्लांट में प्राइमरी स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती है तो रूट एंड शूट ऑर्गन्स आर डेवलप. जैसे आपको पता है, इन केस ऑफ एम्ब्रियो द इम्पोर्टेंट पार्ट इज radical and plumule, and from radical root system and from plumule shoot system is developed. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. So this growth is further known as a secondary growth. It occurs due to activity of secondary meristem. हमने primary meristem मैंने बताया, which is present and available toward the root, shoot and leaf apices. अभी बचता है secondary meristem. As far as secondary meristem is considered, it plays very important role in secondary growth. Secondary growth में important role play करता है. Plant becomes woody and the girth is increased due to secondary growth. Secondary growth की वजह से क्या होता है? प्लांट की गर्थ बढ़ती है and it becomes woody. woody का मतलब ये आप जानते हैं, जिस प्लांट में xylem and phloem टिश्यू है, जिस प्लांट में वुड डेवलपमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं woody. अदरवाइज रेस्ट ऑफ टाइप में हम बोलते हैं कौन से? हर्बेसियस प्लांट. यू गेट इट? Yes, sir. हेलो, यू गेट इट? तो चलो, आपको कम से कम उतना तो पता है कि वुडी प्लांट्स किसको बोलते हैं और हर्बेसियस प्लांट हम किसको बोलते हैं. शायद आपको पता होगा, ऑल द bamboos or all Gramineae members are grasses. Even if bamboo is a tall up to even 100 meter, but it is a typically herbaceous and it is not showing formation of any of the it is not showing formation of any of the wood tissue or woody tissue. चलो, हमें जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखने हैं तो प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर हम कैसे देखते हैं? हेलो, प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर हम कैसे देखते हैं? एनीबॉडी? क्या करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए? मेगा? हाँ, यस. रश्मि बोलो. सेक्शन कटिंग. सेक्शन कट करके. और मैंने कल आपको शायद थ्योरी में ही बताया था, जब पैरेलल लॉन्ग एक्सिस को पैरेलल सेक्शन लिया जाता तो हम उसको बोलते हैं कौन सा? हेलो, लॉन्ग एक्सिस को पैरेलल सेक्शन मतलब कौन सा बोलते हैं?
longitudinal it is known as longitudinal section which is parallel to long axis. और अगर long axis को tangential section लिया तो आप उसको बोलते हैं transverse section. क्या आपने इसके पहले साइकस का RLS और TLS लिया था? साइकस और पाइनस का आपने RLS या और TLS लिया था. फॉर एग्जांपल ये लॉन्ग एक्सिस है, इसको पैरेलल सेक्शन अगर लिया पैरेलल पूरा तो इट बिकम्स लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन. इसको टेंजेंशियल सेक्शन अगर लिया तो इट बिकम्स ट्रांसवर्स सेक्शन. सो यू गेट इट. Even if you want to observe the single tissue, then you want to macerate the material. क्या आपने मैसेरेशन के बारे में सुना है? हेलो, मैसेरेशन में वीक या स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मटेरियल को वार्म किया जाता, डाइजेस्ट किया जाता, एंड सो द टेक्निक विच इज नोन एज अ मैसेरेशन. जस्ट मिनट, एक मिनट का ब्रेक लेते हैं, एक ही मिनट सिर्फ, जस्ट मिनट. क्या आप लोग सुन रहे हैं? हेलो. यस सर. हाँ Yes, sir. हाँ जस्ट मिनट. हमने एलएस क्या होता है, टीएस क्या होता है, आरएलएस क्या होता है और टीएलएस क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया. क्या मैंने स्क्रीन शेयर किया है? हेलो. No, sir. ओके जस्ट मिनट, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ. क्या अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है? हेलो. No, sir. जस्ट मिनट, हो जाएगा, जस्ट मिनट. अभी हो रहा है स्क्रीन शेयर? Yes, sir. क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? क्या दिख रहा है? हेलो, स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? सेल एंड Character features. yes, cells and tissues. Just a minute, I am giving you more details. So characters and characteristic features and functions as well as distribution of plant tissue. अभी मैं थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ. पैरेंकाइमा which is living tissue, walls are made up of cellulose, pectin, hemicellulose. सेल का शेप यूजुअली आइसोडायमेट्रिक मतलब डायमीटर सब जगह एक जैसा. समटाइम दे आर इलोंगेटेड. फंक्शन क्या है देखो, पैकेजिंग ऑफ टिश्यूज, सपोर्टिंग इन herbaceous plants, metabolically these are active, intercellular air spaces allow gaseous exchange, food storage, transport of material through the cell or cell wall. और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है देखो, कॉर्टेक्स, पीक, medullary range, packaging tissue and xylem as well as phloem. Then मॉडिफाइड पैरेंकाइमा में हम अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफाइड पैरेंकाइमा देखते हैं. फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव टिश्यू है, सिंगल लेयर और मल्टीपल लेयर इन केस ऑफ सच एज फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अगर सेक्शन ऑफ लीफ अगर आपने कनेरीचा किंवा ज्याला तुम्ही म्हणता नेरियम सेक्शन लिया तो आप मल्टीपल एपिडर्मिस देखते. उसके बाद मेसोफिल अगेन लिविंग टिश्यू, एंडोडर्मिस अगेन living tissue, pericycle again living tissue, and these tissues are present in the different parts such as single layer of cell covering entire primary body. Mesophyll may present between upper and lower epidermis of the leaf. Endodermis may present around the vascular bundle. Pericycle in roots between central vascular tissue and endodermis. So you get it where these different tissues are observed. हेलो. यस सर. ये अलग अलग. हाँ, उसके बाद कोलेनकाइमा.
शायद आपको पता होगा कोलेनकाइमा इज अ लिविंग. I am also going to show you the diagrams, and it is made up of cellulose, pectin, and hemicellulose. These are elongated polygonal with tapering ends, and they support or they give mechanical support, and they are available in the outer region of a cortex, that is angles of a stem, midrib of a leaf, etc. Then lastly, very important tissue, that is sclerenchyma, and sclerenchyma includes fibers and sclerites, and both these are dead. Mainly this shows presence of lignin, cellulose, pectin, and hemicellulose also present, and sclerites present in the form of a fiber. They are present in the outer region of a cortex, pericycle of the stem, xylem, phloem, cortex with phloem shells, and stones of a fruit and seed coat. आपने फोड़ा हुआ नारियल देखा है? नारियल ब्रेक करने के बाद आपने देखा है नारियल की आप करवंटी बोलते हैं, और एक अंदर करवंटी के जो लगा हुआ रहता है, जर करवडून काढले स्क्रॅचेस घेऊन बघितले तर इट शोज प्रेझेन्स ऑफ अ स्क्लेराइड और इट इज अ sclerenchymatous tissue. So now you are better known with parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Is it clear? Hello. Yes, sir. Now we should have an idea regarding the xylem and phloem, which are two important complex tissues. Now first one, that is xylem, which is a mixture of living and dead cells. ध्यान में रखो, पहला हमने पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा लिविंग देखे थे, स्क्लेरेंकाइमा डेड टिश्यू देखा. जाइलम एंड फ्लोएम को हम बोल रहे हैं, जाइलम को स्पेसिफिकली हम बोल रहे हैं इट इज अ लिविंग मिक्सचर ऑफ लिविंग एंड डेड. Xylem also contains fibers as well as parenchyma. So xylem shows presence of tracheids and vessels. Tracheids and vessels, both these are dead tissues, and they are present in the form of a elongated or tubular or sometimes broad or cylindrical, and they are part and parcel of a vascular tissue system. Then very important, that is a phloem. As far as phloem considered, it is again mixed type of cells and living and dead cells, and phloem also contain fibers and sclerites. अब उसके हम दो देख रहे हैं, एक sieve tubes और दूसरा companion cells. Sieve tubes and companion cells, both of these are living cells and they are present in the vascular tissue system. So now you have idea regarding these different types of tissue system. So sorry, these different types of tissues. आप लोग यहाँ देख सकते हैं पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा. हेलो, आप लोग देख रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा. लेकिन एक बात ध्यान में रखो, इन केस ऑफ पैरेंकाइमा नॉर्मली इंटरसेल्युलर गैप इज अवेलेबल. अब उसके बाद में हम क्लोरेनकाइमा देख रहे हैं. क्लोरेनकाइमा का मतलब ये है द टिश्यू व्हिच शोज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. उसके बाद यहाँ नीचे देखो, इट इज अ स्पॉन्जी पैरेंकाइमा. स्पॉन्जी मींस स्पंज लाइक. देन एरेंकाइमा, दैट इज एयर स्टोरेज टिश्यू व्हिच इज parenchyma, so it is known as a erenchyma. Then lamellae, you can observe here angular tissues, colenchyma में. Then lacunar colenchyma. Then there is no need to go through each and every of these. Next हम देखते हैं. So sclerites, आप यहाँ पहले जो फिगर्स देख रहे हैं, A, B, C, D, E, F and G, all these are sclerites. आपके ध्यान में आ रहा है? Whether the sclerites are living tissue or dead tissue? Anybody of you? Hello? क्या sclerite living tissue है या dead tissue है? So dead tissue. Hello? sclerite living tissue है या dead tissue है? कौन बता रहा है? Hello? स्क्लेराइड लिविंग टिश्यू है क्या डेड टिश्यू है? श्रुति? So dead. यस एग्जैक्टली. सो स्क्लेराइड इज अ डेड टिश्यू, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. Sclerites A to D stone cells they are also called as the brachysclerites, and H and I are fibers. आप यहाँ देख सकते हैं फाइबर्स लॉन्ग है. brachysclerites कैसे थोड़े से शॉर्ट है और दे हैव ब्रांचेस, सो दे आर नोन एज ब्रैचिस्क्लेराइट्स. अब उसके बाद हम वेसल्स के बारे में बात करते हैं. मैंने इसके पहले आपको बताया था कि जाइलम शोज प्रेजेंस ऑफ ट्रैकिड्स एंड वेसल्स. अब ट्रैकिड्स में देखो, वॉल ऑफ ट्रैकिड्स व्हिच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट थिकनिंग.
क्या मैंने कल आपको एनाटॉमी लेते वक्त बताया था, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द थिकनिंग? हेलो, ट्रैकिड्स के वॉल की थिकनिंग देखो, पहले एन्युलर, एन्युलर म्हणजे राउंड, उसके बाद सेकंड देखो सर्कुलर मतलब स्प्रिंग लाइक, देन थर्ड वन इज अ स्कैलरी फॉर्म, देन फोर्थ वन इज रेटिकुलेट, चौथा जो है तो रेटिकुलेट, देन नेक्स्ट वन ई व्हिच इज पीटेड, पिट यानी होल या पोर, पीटेड, देन EGH सिंपल पिट्स, EFG ये जो है ये सिंपल पिट्स है, उसके बाद FIJK आप देख लो उसके सामने, IJ और K इनमें खास करके देखा तो दीज आर नोन एज बॉर्डर्ड पिट्स, क्योंकि पिट है लेकिन उसको बॉर्डर है। आपके ध्यान में आ रहा है? आप आई फिगर देखो, आपके ध्यान में आएगा, इट इज अ पिट but it has a border and hence it is known as a bordered pits। आ रहा है ध्यान में? लेकिन J and K these figures are in the different डायरेक्शन, अलग डायरेक्शन से। चलो हम दूसरा देख लेते, फेसल्स। हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आप अभी स्क्रीन पर जो दो फिगर देख रहे हैं, A and B, these are the vessels। पहली वेसल्स आप देख लो, वेसल विद सिंपल परफोरेटेड प्लेट, सिंपल परफोरेटेड प्लेट है पहले वेसल में, और दूसरे में थोड़ा सा परफोरेशन ज्यादा है, दैट इज वेसल विद मल्टीपल पोर्स और मल्टीपल प्लेट्स, एंड इफ यू आर टेकन द क्रॉस सेक्शन देन दे लुक लाइक, सिंपल है तो ऐसा, मल्टीपल है तो ऐसा। इज इट क्लियर टू यू? हमने अभी भी एनाटॉमी का कुछ भी नहीं देखा, हम सिर्फ सेल्यूलर कंपोनेंट्स कौन से है ये बात कर रहे हैं। Is it clear to you? Yes, sir. उसके बाद हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। Here are two figures. First one that is A which shows position in the cell, cell में position कहाँ है, और B figure which is apart, which is enlarged portion है B figure। So you can observe these different components of the cell which include nucleus, nucleolus, then chloroplast, cell wall, etc. ठीक है, so these are the different components of the cell। Then here you can observe chromoplast in pericarp of tomato। टोमेटो के पेरिकार्प में आप chromoplast या colorful pigments देख सकते। Then leucoplast in cell, leuco means colorless। Remember, whenever term used chromo is related to color and leuco is related to white। You get it? Hello? Yes, sir. क्या आपके ध्यान में आया? ल्यूकोप्लास्ट मींस कलरलेस प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट मींस कलर्ड प्लास्टिड। हम क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन बोलते हैं, एंड रीजन बिहाइंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ग्रीन इन कलर एंड सो इट इज नोन एज अ क्लोरोप्लास्ट। अभी हमें यह देखने की जरूरत नहीं, हमने सेल के बारे में इतना पार्ट देखा। आई थिंक many of you might have observed the different cells which are filled with the different grains and different stored food material। So A, B, C, D, आप A में देख सकते हैं, this is the grain in case of a wheat। शायद आपको पता होगा, आप जब चक्की से wheat या चावल या कोई फ्लोर पिसा के लाते तो आपको मालूम होगा, कोई बहुत पतला रहता है, कोई बहुत जाड़ा लगता है। शायद आपको ध्यान में होगा, रोटी जब बनाते हैं, चपाती जब बनाते हैं, तो you want to apply more pressure for making chapati। Is it clear to you? Yes, Hello? sir. तुम्ही लाटण्याचा वापर करून प्रेशर अप्लाय करता, बिकॉज फ्लोअर शोज प्रेझेन्स ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ कार्बोहायड्रेट अलॉंग विथ द लिपिड्स अँड प्रोटीन्स, अँड दॅट्स वाय यू वॉन्ट टू अप्लाय मोर प्रेशर इन केस ऑफ अ व्हीट। आणि तेच तुम्ही भाकरीच्या बाबतीत बघितलं असेल, फक्त हाताने सिंपल प्रेशर देऊन भाकरी थापली जाते। इज इट राईट? Yes, sir. So you can observe here different grains. A grain which is in case of A, that is wheat, B is in case of a maize, and C is in case of a castor। So this one is a A। A मध्ये तुम्ही बघता that is aileron grains in case of a wheat। B मध्ये तुम्ही बघता B is in case of a maize। कदाचित तुम्हाला माहिती असेल, ज्वारीची भाकरी बनवायची झाली तर पिठामध्ये पाणी गरम मिक्स करतात। इज इट राईट?
Yes, sir. आणि तांदळाची किंवा मक्याची भाकरी बनवायची असेल तर साधा पाणी यूज करतो sir. साधं पाणी किंवा थंड पाणी म्हणू आपण किंवा नॉर्मल वॉटर वी आर युजिंग बिकॉज दीज डिफरेंट सेल्युलर कंटेंट्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब उसके बाद हम सेल्युलर इंक्लूजन्स के बारे में देखते। सो हियर यू कैन ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे क्रिस्टल्स। कदाचित तुम्ही सगळ्यांनी खाल्ली असेल धोप्याची भाजी, धोपा किंवा अळूची भाजी खाल्लेली असेल। अळूची भाजी जेव्हा बनवली जाते त्यावेळेला त्याच्यात चिंच घालतात, विच इज बेटर नोन टू यू। हॅलो, Yes, sir. आणि चिंच घालण्याचं कारण तुम्हाला माहिती असेल, अळूमध्ये कॅल्शियम कार्बोनेटचे क्रिस्टल्स असतात आणि कॅल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल मुळे आपल्या थ्रोटला किंवा इंटरनल ह्याला इरिटेशन होतं। अँड टू अवॉइड दिस नॉर्मली चिंच वापरली जाते विथ इमली किंवा चिंच विच शोज प्रेझेन्स ऑफ टार्टारिक ऍसिड। आणि या टार्टारिक ऍसिड मुळे हे जे क्रिस्टल्स असतात हे क्रिस्टल्स काय होतात, त्याच्यामध्ये डिझॉल्व होतात। Even you might be known there are certain graphites, these are also crystals. So such a type of crystals also present in case of some of the plant cells. Cystolith present in case of Ficus elastica. Cystolith द्राक्षाच्या घडासारखा जवळपास दिसतो। So I am not going to give more detail regarding this. Now what is this? Hello, figure number A, B, C and D. Sir, stomata. स्टोमाटा, यस एग्जैक्टली, दीज आर स्टोमाटा। अब स्टोमाटा है लेकिन आप देख सकते हैं ए, बी एंड सी, इन तीनों में स्टोमाटा शोज प्रेजेंस ऑफ गार्ड सेल्स। एंड ये तीनों सेल के सेल्युलर टाइप्स जो है, इनके सब्सिडरी सेल्स जो है, दे आर आइदर 1, 2, 3 और मेनी एंड दे मे बी सेम और इक्वल और अनइक्वल इन साइज। और खास करके आप तीसरा टाइप, चौथा टाइप जो देख रहे हैं दैट इज डायासाइटिक। डाय मींस 2। तो पहला टाइप आपने देखा एनोमोसाइटिक, दैट इज अनइक्वल। पैरासाइटिक वेयर इट इज अ पैरेलल, एंड थर्ड वन दैट इज पैरासाइटिक, एंड नेक्स्ट वन दैट इज डायासाइटिक। सो अनोमोसाइटिक, अनिसोसाइटिक, डायासाइटिक एंड पैरासाइटिक, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोमाटा। अब इसके बाद ट्राइकोम्स। In the last lecture I have told you regarding the trichome. Trichome means just these are the outgrowths, hairy structure जे present असतात ते। You get it? Plant part वरती present असणारे hairy structures. Now as far as these different hairy structures are considered, so you can observe the first, that is Helianthus anus. पहला type of hair जो है which is present in case of Helianthus anus or sunflower, you can observe the presence of multiple layers of the cell in a single row, and so this is simple type of hair which is present in case of sunflower. उसके बाद बी टाइप ऑफ हेयर जो है which is in case of पार्थेनियम। पार्थेनियम म्हणजे आपण म्हणतो गाजर गवत, माहिती आहे? हेलो, Yes, sir. सो पार्थेनियम में अगर देखा गया तो अपेक्स की सेल जो है तो वो थोड़ी स्वेल हो गई। अब सी में देखो, अगेन इट इज अ मल्टीपल, लेकिन आउटर मोस्ट लेयर जो है ये जस्ट फाइबर लाइक और कॉइल हो गई है। एंड सो दिस सी टाइप विच इज नोन एज कैलेंडुला ऑफिसिनालिस। एग्जांपल है कैलेंडुला ऑफिसिनालिस। उसके बाद स्वांकस, उसके बाद ऑसिमम और बेसिलिकम। सो यू कैन ऑब्जर्व दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ outgrowths which are observed on the surface of the plant. Plant च्या surface वरती मिळणारे outgrowths हम one by one अलग अलग टाइप देख रहे हैं। अब as far as different plant parts consider, हमने शुरू में देखा था stem और root। अगर किसी ने आपको एक जस्ट समझ लो टुकड़ा दिया, पोर्शन दिया प्लांट का, और अगर आपको पूछा कि whether it is of stem or it is of a root, then आप कैसे कंफर्म करते हो? You have to take the transverse section and then you are going to make it confirm whether it is of a stem or it is of a root. अब यहाँ कंपैरिजन दिया है, थोड़ा देख लो। एंडोडर्मिस in case of a stem may or may not be present. एंडोडर्मिस नहीं रहती। एंडो means inside, derma that is skin layer. In case of a root, always very clearly marked the endodermis is present. Vascular bundle in case of stem normally conjoined, collateral and endarched type, while in case of the root, radial vascular bundles, and these are of exarch type, that is protoxylem toward the periphery.
देन कंपैरिजन बिटवीन स्टेम ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट। मैंने शुरू में ही आपको बताया था 3 फंडामेंटल पार्ट्स कौन से हैं, लीफ, स्टेम एंड रूट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। नाउ हम पहले देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन स्टेम ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट। अब कैरेक्टर की तरफ पहला ध्यान दे दो। कैरेक्टर कौन कौन से कंसीडर किए? फर्स्ट वन हाइपोडर्मिस, सेकंड वन कॉर्टेक्स, थर्ड वन एंडोडर्मिस, फोर्थ वन पेरिसाइकल, फिफ्थ वन medullary ray, sixth one teeth, seventh one vascular bundles. So these are the different layers or regions of a stem or section अगर लिया तो these are the different layers. अब in case of dicot, how the hypodermis and hypodermis in case of dicot and monocot is? पहला देखो, hypodermis in case of a dicot may or may not be present. If present, mostly parenchymatous. एक तो present नहीं रहती, अगर present है तो it is made up of parenchyma. In case of monocot, hypodermis generally present and it is parenchymatous. Hypo means below, derma means skin. तो एक्सटर्नल स्किन लेयर जो है इसके बिलो द लेयर होती है, दैट इज हाइपोडर्मिस। उसके बाद कॉर्टेक्स, इन केस ऑफ डाइकॉट few layer of parenchyma extended up to endodermis and which is known as endodermis. उसके बाद endodermis का कैरेक्टर देखो, generally endodermis absent in case of dicot, mostly represented by endodermoid cells present in the form of a ring. अगर present है तो endodermoid cells में, लेकिन in case of monocot, cells of following hypodermis are not differentiated. They are generally parenchymatous and extend from hypodermis up to the center of the axis, so it is known as a ground tissue. उसके बाद नेक्स्ट है पेरिसाइकल। शायद आपको ये ध्यान में होगा, एरिया एनक्लोज्ड बाय एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल इज नोन एज, क्या बोलते हैं अनिका? अनिका, area enclosed by endodermis and pericycle is called as, क्या बोलते हैं उसको? Anybody? सर पैसेज सेल? नहीं नहीं नहीं, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल से जो एरिया एनक्लोज होता है, द एरिया विच इज नोन एज स्टीली, STELE। आया आप ध्यान में? आपने इसके पहले स्टीलर टाइप्स देखे थे? हेलो, क्या आपने इसके पहले स्टीलर टाइप्स नहीं देखे थे? टाइप ऑफ स्टीली देखे थे क्या नहीं देखे थे? हाँ, और जहां आपने टाइप ऑफ स्टीली कौन कौन से देखे थे? फॉर एग्जांपल प्रोटोस्टीली देखा था? हाँ, यस, हैप्लोस्टीली, एक्टिनोस्टीली, सोलिनोस्टीली, डिक्टियोस्टीली, अलग अलग टाइप ऑफ स्टीली देखे थे। सो हियर यू हैव ऑब्जर्व्ड द कंपैरिजन इन केस ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रिगार्डिंग द हाइपोडर्मिस एज वेल एज सिमिलरली द कॉर्टेक्स। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज इन केस ऑफ एंडोडर्मिस भी देखा। उसके बाद पेरिसाइकल, इन केस ऑफ डाइकॉट pericycle is present between the vascular tissue and cortex, either parenchyma or sclerenchymatous, or one or few layered pericycle is observed in case of a dicot. लेकिन अगर आपने मोनोकॉट में देखा तो मोनोकॉट में ऐसी कोई there is no differentiation like this one of पेरिसाइकल। पेरिसाइकल करके डिफरेंशिएशन नहीं होता। अब एंडोडर्मिस हो गया, पेरिसाइकल हो गया, उसके बाद हम देखते हैं दैट इज अबाउट द medullary rays. In case of dicot, the medullary rays shows in presence of strip of parenchyma between the vascular bundle. Vascular bundles के बीच में strip of parenchyma is observed. Then teeth, central and well marked teeth present in the form of a empty area or parenchymatous field cells in case of a dicot, while in case of monocot, well marked teeth cannot be distinguished नहीं रहती. So these are the differences in some of the dicot as well as monocot root. उसके बाद हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन रूट ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट और मोनोकॉट के रूट में कंपैरिजन। मैं जानबूझ के अभी इसको आपको दिखा रहा हूं या बता रहा हूं, जस्ट मिनट। क्या आप देख रहे हैं अभी?
कंपैरिजन बिटवीन डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट? हेलो, Yes, sir. डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट का आपके सामने स्क्रीन पर कंपैरिजन आपको दिख रहा है. Vascular bundles. In case of dicot, there are 2 to 6 protoxylem groups. 2 ते 6 proto म्हणजेच primitive. 2 ते 6 protoxylem groups. There are rarely more groups. While in case of a monocot, number of protoxylem group generally 2 to 6. And for the condition is polyarch. Poly means many. Polyarch condition. Rarely only few are observed. Pericycle. In case of dicot, pericycle generally give rise to lateral root, vascular cambium and cot cambium. In case of monocot, only lateral roots are present. Then cambium. Cambium appears lateral to form a complete ring between the xylem and phloem group. Xylem और phloem के बीच में cambium की ring दिखती है. In case of monocot, cambium is absent. आ रहा है ध्यान में? हेलो, Yes, sir. आपके ध्यान? हाँ, उसके बाद पीथ स्मॉल और एब्सेंट इन केस ऑफ डाइकॉट, व्हाइल इन केस ऑफ मोनोकॉट लार्ज एंड वेल डिफाइंड पीथ इज प्रेजेंट. यहाँ एक की फॉर आइडेंटिफिकेशन दिया है. आप की की तरफ देखो. क्या आप की देख रहे हैं? हेलो, Yes, sir. हाँ, आप एक 2 मिनट देख लो. मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं. आप तब तक देख सकते. मैंने की आपके सामने रखी है, आप देख सकते. क्या आपको दिख रहा है सामने? हेलो, की फॉर आइडेंटिफिकेशन दिख रहा है? यस. हेलो, Yes, sir. हाँ, आप एक 2 मिनट के लिए देखो, सिर्फ 2 मिनट. आप लोग की देख रहे हैं? हेलो, हेलो, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. हाँ, तो आप अभी देख सकते हैं की फॉर आइडेंटिफिकेशन. वेस्कुलर बंडल कंजाइंट, कोलैटरल या बायकोलैटरल एंड एंडार्च है. एंडोडर्मिस वेल डेवलप नहीं है तो हम स्टेम बोलते हैं. मैंने आपको पूछा था, किसी ने आपको प्लांट मटेरियल दिया और you want to identify that whether it is a portion of a stem or it is a portion of a root. Then आप सेक्शन लेने के बाद कैसे कंफर्म करोगे? If it shows presence of vascular bundles which are conjoined, collateral or bicollateral and endarch, endodermis well defined नहीं है तो stem. Vascular bundle radial कब बोलते हैं? रेडियल है, एग्जैक्ट है. एंडोडर्मिस कॉन्स्पिक्यूअस यानी छोटी है विथ कैस्पियन स्ट्रिप्स, देन इट बिलोंग्स टू रूट. अब डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट के अलग अलग पॉइंट्स यहाँ दिए हैं. यू कैन गो थ्रू इट लेटर ऑन. आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू इन अ लेटर पीरियड. चलो मैं आपको कुछ जरूरी वाला अभी बताता हूँ. स्क्रीन पर कौन सा डायग्राम डिस्क्रिप्शन है अभी? GMS. Zia whether it belongs to monocot or dicot? Monocot. मोनोकॉट. तो आपने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो मोनोकॉट है तो वेस्कुलर बंडल कैसे रहेंगे? वेदर दे आर ओपन और क्लोज्ड. वेस्कुलर बंडल्स आर आइदर ओपन और ऑफ क्लोज टाइप. एनीबॉडी ऑफ यू कैन टेल मी? हेलो, Sir, open. ओपन कब बोलते हैं? यस, आपने ओपन तो बताया, ठीक है, हम समझेंगे. लेकिन ओपन कब बोलते हैं और क्लोज कब बोलते हैं? यू हैव एनी आइडिया? हर्षा पाल, हर्षदा पाल, क्या आपको आइडिया है?
if cambium is present, then it is known as open type, and if cambium is absent, then it is known as of closed type. You get it? Yes, sir. Hello. So whether the vascular bundle is open or the vascular bundle is closed, it depends on absence or presence of cambium. So now you can observe here, ट्रांसवर्स सेक्शन आपने लिया, ट्रांसवर्स सेक्शन लेने के बाद epidermis कैसी है? outermost layer of single row of cell is covered by a thin cuticle, epidermal hairs are absent. Then hypodermis, it lies below the epidermis. Hypodermis is 2 to 3 layer thick and is made up of sclerenchymatous cells. मैं आपको डायग्राम पे दिखाता हूँ. Now you can observe here the space of stem, it is just a outline. आप देख सकते हैं यहाँ epidermis followed by hypodermis. Hypodermis 3 से 4 लेयर वाला है. बाकी ये पूरा जो है पूरा टिश्यू इज नोन एज ग्राउंड टिश्यू. इट शोज प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर बंडल्स. वैस्कुलर बंडल भी आप देखोगे तो सेंटर की तरफ जो वैस्कुलर बंडल है वो बड़े हैं, लेकिन पेरीफेरी की तरफ जो है छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल्स है. यू गेट इट? हेलो, क्या आपके ध्यान में आ रहा है? Yes, sir. Then epidermis, hypodermis, you can observe here presence of the ground tissue. Then protoploem, proto means primitive. Then metaxylem, meta means larger elements of a xylem. Protoxylem lacuna, that is water cavity, so such a type of internal arrangement observed in case of a maize stem or Zea maize stem. ठीक है, आप एक जगह कहीं लिख के रखो maize stem. मैं बताता हूं क्यों ऐसा बताया. नेक्स्ट है कैना. क्या आप लोगों ने कैना प्लांट देखा है? हेलो, यस सर. कैना प्लांट देखा है? कब देखा है कैना प्लांट? शायद मैंने कल ही आप लोगों से कैना का फ्लावर शेयर किया था. इज इट राइट? यस सर. जस्ट मैं बताता आपको कहाँ है, मुझे कौन से ग्रुप पे किया था वो याद भी नहीं है, लेकिन आई थिंक आई हैव yesterday shared only Canna flowers. Just a minute. नहीं, यहाँ नहीं शेयर किया मैंने, शायद आप लोगों से शेयर नहीं किया था क्या कैना का फ्लावर? हेलो, किए थे सर. कब किया था? कल किया था? नहीं सर, उससे एक दिन पहले. एक मिनट, हो सकता है मैंने प्रैक्टिकल के ग्रुप पे किया होगा. यस, देख लेते. मेरे अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं आपसे शेयर किया था ऐसा. हाँ, यस यस यस, प्रैक्टिकल पे के ग्रुप पर मैंने किया था. आप देख रहे हैं? हेलो, कैना का फ्लावर दिख रहा है आपको? नो सर. नहीं दिख रहा? नो सर. ओके सर सब कुछ ब्लैक दिख रहा है. जस्ट मिनट, अभी भी नहीं दिख रहा है आपको? नो सर. No, sir. ओके ओके ओके, जस्ट मिनट आई एम गोइंग टू मेक इट विजिबल फॉर यू. जस्ट मिनट. कैना म्हणजे कर्दळ माहिती नाही आहे तुम्हाला? हॅलो, कर्दळी माहिती आहे तुम्हाला? कर्दळी माहिती आहे की नाही? बर, ठीक आहे, थांबा. जस्ट मिनिट. अभी आपको स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है क्या? नहीं? नो सर. ओके ओके, मैंने वो विंडोज शेयर नहीं की, इसलिए यू आर अनेबल टू ऑब्जर्व. ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है. हम लोग पहले हमें जो कंप्लीट करना है वो देख लेते हैं. कैना. अब टीएस ऑफ कैना,
केस ऑफ कैना शायद आपको पता होगा, मैंने कैना को एक्सप्लेन किया था. कैना इज सपोज टू बी फ्लावर शोज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दैट इज प्रेजेंस ऑफ हाफ फर्टाइल स्टेमेन. मैंने आपके ग्रुप पे कैना के लाल कलर के फ्लावर 2 या 3 फोटोग्राफ शेयर किए थे, आप देख सकते, उसमें हाफ फर्टाइल फ्लावर्स है. चलो कैना में आप अगर डायग्राम देख लेते सीधा सीधा कैना की, सो यू हैव आइडिया हियर. outermost layer epidermis which is followed by few layers of parenchyma, then inner layer of a sclerenchyma. sclerenchyma है, उसके बाद florenchyma. florenchyma की लेयर का है immediately followed by parenchyma, collenchyma, then bundle sheath, bundle का sheath, then xylem, and this one is the tissue that is ground tissue. So such a type of vascular bundles observed in case of a कैना. कैना का सेक्शन लेना आपके लिए पॉसिबल है करके मैंने कैना का एग्जांपल बताया. आप आइडेंटिफिकेशन की स्टेप यहाँ देख लो. वैस्कुलर बंडल्स आर कंजाइंट, कोलैटरल एंड एंडार्च. एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल आर एब्सेंट, ग्राउंड टिश्यू इज प्रेजेंट, वैस्कुलर बंडल्स आर क्लोज एंड बंडल शीथ इज प्रोमिनेंट. चलो हमने यहाँ कैना का देखा. पहले मैंने बताया था आपको लिख के रखने के लिए, पहला कौन सा बताया था जनरा? हेलो, इसके पहले कौन सा देखा लिखा था आपने? मेज स्टेम. मेज. मेज के बाद आपने लिखा है अनदर दैट इज कैना. कैना के बाद में नेक्स्ट देखते हम व्हीट. लिखो व्हीट ट्रिटिकम. क्या व्हीट का स्टेम जो है वो सॉलिड है या हॉलो है? एनीबॉडी कैन टेल मी. whether hollow. It is normally hollow. So you can have idea of this wheat stem and you can observe here the character. Vascular bundles are conjoined, collateral and endarch. Endarch जब रहता तो हम बोलते protoxylem toward the periphery. Stomata are present in the epidermis. Monopod stem है because endodermis, pericycle are absent. Vascular bundles are many and closed. Bundle sheath cell is prominent. Ground tissue is present. आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने अभी अभी बताया था कि व्हीट का जो है, व्हीट में सेंट्रल पोर्शन जो है हॉलो रहता है. एपिडर्मिस, वैस्कुलर बंडल, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू एंड पीथ कैविटी. सो यू कैन ऑब्जर्व इट हियर आल्सो. दूसरा आपने लिखा था कौन सा प्लांट? व्हीट. तीसरा लिखो बोराविया, BOERHAAVIA. बोराविया. क्या आप लोगों ने बोराविया इसके पहले पढ़ा है या देखा है? हॅलो. नो सर. बोराविया डिफ्युजा म्हणजे आपण त्याला म्हणतो पुनर्नवा किंवा कावळी किंवा मराठीत त्याला म्हणतात खापरकुटीची भाजी. काय माहिती आहे हर्षला? खापरकुटी म्हणतो, दॅट इज बोराविया डिफ्युजा किंवा पुनर्नवा किंवा कावळी. शायद आपको पता होगा निक्टेजिनेसी फैमिली में से कुछ they show abnormal development and boravia also shows abnormal development. अब बोराविया की डायग्राम आप लोग यहाँ देख रहे हैं. बोराविया की डायग्राम देखेंगे तो दो मेजर वैस्कुलर बंडल्स विच आर लार्जर प्रेजेंट टुवर्ड द सेंटर और पेरी में बहुत सारे छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल्स है. देन यू ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ कंजंक्टिव टिश्यू, देन सेकेंडरी जाइलम, देन हियर इज द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम. So typical vascular bundles are present in case of boravia. उसके बाद नेक्स्ट, मतलब 3 हो गए. आप नेक्स्ट ले लो. कौन कौन से डिस्क्रिप्शन लेना है मैं आपको बताता. अगर आपको जरूरत है तो आप पेज नंबर भी साथ साथ लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो अशोक कुमार का जो बुक दिया था, बेंद्रे कुमार के बुक से ही मैं आपको बता रहा हूँ. उसमें आपने पहला जनरा जो लिया था दैट इज मेज के लिए आपको डिस्क्रिप्शन जो है, पेज नंबर डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा 260. सॉरी, मेज के लिए आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा 266. जहां मेज लिखा है उसके सामने 266 और फिगर 267 पे है. लिख दो. लिख लिया? यस. लिख लिया? उसके बाद कैना 268 एंड 269. उसके बाद व्हीट 270 एंड 271. ठीक है? यस सर.
उसके बाद बोराविया 272 एंड 273, ठीक है। यस उसके बाद आपको और एक बताता हूं, एंड दिस वन इज बहुत सारे लेने में कोई ज्यादा ये नहीं है। साल्वाडोरा नहीं ले रहे, ड्रेसेना है क्या देखते हैं, लेप्टाडेनिया अस्कलपेडियसी का मेंबर है, वो भी ले सकते हैं, नहीं तो और एक या दो लेना अभी और जरूरी है। चलो बिग्नोनिया ले लो नेक्स्ट। बिग्नोनिया 290 एंड 291 लिखा। बिग्नोनिया में क्या है, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। क्या आपके ध्यान में आया व्हाई इट इज एबनॉर्मल? मैं फिर से आपको बता रहा हूं एबनॉर्मल क्यों है। हियर यू कैन ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ कैम्बियम व्हिच इज एबनॉर्मल, मतलब कैम्बियम को ही वेजेस एंड फ्लेंजेस डेवलप हुए, and that's why amount of secondary xylem and secondary phloem form on the both side of cambium is different, and that's why bignonia is considered as an abnormal secondary growth. आखिरी वाला ले लो ड्रेसेना, and number is 292 and 293। तो कितने स्टेम हो गए आपके? 6 हाँ, स्टेम कितने हो गए? 6। और आपको पेज नंबर और डिस्क्रिप्शन मैंने दिया, बेंद्रे कुमार का सेकंड वॉल्यूम में से आपको फिगर्स और डिस्क्रिप्शन लेना है। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते, क्योंकि इसमें से 2-3 तो आपने मिनिमम किए हुए हैं, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ अभी बताने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट ले लो। कौन कौन से टिपिकल प्लांट पार्ट में बोला था, स्टेम, लीफ और रूट। इसके बाद रूट, रूट का हमने देखा था कि रूट के बारे में xylem and phloem present on the stem same radius or different radius। रूट में डिफरेंट रेडियस पे रहते हैं। पहला रूट ले लो सीसर, CRCER। सीसर म्हणजे काय? हेलो, व्हाट इज मीन बाय सीसर? सीसर म्हणजे कोणता प्लांट? एनीबडी? सीसर एरेंटियम, चना किंवा हरभरा। नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर द रूट इन केस ऑफ चना और हरभरा। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि xylem and phloem present on the different radius। फॉर एक्झाम्पल बघा, या रेडियस वर xylem आहे तर xylemच आहे, या रेडियस वरती फक्त phloemच आहे, इथून इथपर्यंत या रेडियस वरती, and so on। So this is typical anatomy of root in case of scissor। उसके बाद नेक्स्ट ले लो टिनोस्पोरा। टिनोस्पोरा मतलब कौन सा प्लांट? एनीबडी? गुड़वेल, गुड़वेल या आप उसको बोलते हैं गुड़ूची, ठीक है। तो पेज नंबर गुड़ूची का ले लो 296 एंड 297, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप बना के बाद में तैयार कर, जरूरत लगी तो आप मुझे बता दो, हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक ले लो बीटा वुल्गैरिस, BETA, बीटा वुल्गैरिस। आप जिसको बोलते बीट रूट, और बीट रूट का अबनॉर्मल क्यों है? तो इट हैज अ फंक्शन ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल का फंक्शन बीट रूट करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अबनॉर्मल इन नेचर। और एक ले लो चिया मेज, चिया मेज, ZEA, चिया मेज, पेज नंबर 302 एंड 303। कितने हो गए? सर 4 सर। 4 हो गए, ठीक है। ज्यादा बहुत लेने की जरूरत वैसे नहीं है। अब नेक्स्ट ले लो मैंगो लीफ, मैंगो लीफ, पेज नंबर 308 एंड 309।
सॉरी, मैंगो का 308 है, और नेक्स्ट है मेज का लीप, मेज का लीप है 309। डिस्क्रिप्शन और डायग्राम आपको सेम यहाँ देखने मिलेगी। सो यू कैन ऑब्जर्व हियर अपर एपिडर्मिस में जो बड़े बड़े सेल्स है, दीज आर नोन एज बुलीफॉर्म सेल्स। सो जियामेज, तो 2 लीफ के हो गए, और एक लीफ आपको लेना है, जस्ट मिनट, और एक लीफ आपको लेना है अपना लीफ ऑफ नेरियम, NERIUM, नेरियम लीफ। पेज नंबर मैं बताता हूं, आप कंपैरेटिव वैस्कुलर बंडल्स की डायग्राम यहाँ देख सकते हैं, ABCDEF, यानी टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल, रेडियल, एम्पिट्रिबल, एम्पीवेसल, कोलैटरल, क्लोज, कोलैटरल, ओपन, बाइकोलैटरल, ये पूरी चीजें यहाँ दी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, आपको सेक्शन लेना था नेरियम लिप का। डिस्क्रिप्शन और कहाँ है ये मैं आपको बताता हूं। ये तो निम्फिया का है। ट्रॅपा यानी ट्रॅपा बायस्पाइनोसा म्हणजे शिंगाडा। चला कॅज्युरिना घेतला तरी चालत नाही, कॅज्युरिना नका घेऊ, कारण कॅज्युरिना अँजिओस्पर्म मधला नाही आहे। इथं जर नसेल उपलब्ध आहे, यस, नेरियम पेज नंबर घ्या 343, लीला, हेलो। हाँ, तो ऐसे हमने क्या क्या देखा, देखो स्टेम के पहले 6 देखे, रूट के हमने 4 देखे, राइट, और लीफ के हमने कितने देखे, 3। तो इतने का एनाटॉमी का पार्ट आपको कंप्लीट करना है। जस्ट मिनट, अभी अपना एनाटॉमी के बारे में जो जरूरी था वो पार्ट कंप्लीट हो गया है। मुझे थोड़ा सा अभी क्या इसके बारे में किसी को प्रॉब्लम है कोई? हेलो हेलो, नो सर। क्योंकि बहुत सारे प्लान जो है आपने देखे हैं, सेक्शन भी हो सकता है आपने इसके पहले किए हैं, तो हमारा पर्पस एक ही था, हाउ दीज डिफरेंट tissues arranged in case of a different types of a plant, either in monocot or in a dicot, how these plants are arranged, that is important. So you can observe it here in case of this practical. आप लोगों को सिर्फ लिखना और डायग्राम स्केच करना है। अभी आप लोग अपना रिकॉर्ड लिखना शुरू कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्ड लिखना शुरू करो। मैंने हालांकि आपको बोला था कि आप मुझे हार्ड सॉफ्ट कॉपी बना के दे दो, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई सॉफ्ट कॉपी देने के इसमें है करके। अब बजे है 3:05 हो गए हैं। हेलो, यस सर। यस सर। आप सभी लोगों को मैं एक 5 मिनट का ब्रेक देता हूं, जिसमें आप, मैंने इसके पहले आपको प्रैक्टिकल के टाइम में आपके प्रैक्टिकल या थ्योरी के ग्रुप पर मैंने आज दोपहर के एक इसके बारे में डाला था, स्टेट लेवल लेक्चर के बारे में डाला था। यस, बिकॉज टुडे देयर इज अ वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, स्टेट लेवल वेबिनार है, एंड ऑल ऑफ यू आर इन्फॉर्म्ड टू ज्वाइन दिस वेबिनार। वेबिनार 3:30 बजे शुरू हो रहा है। मैं 5 मिनट आपको ब्रेक देता हूं। अगर आप में से किसी ने यानी रजिस्टर नहीं किया तो इस पर क्लिक करके रजिस्टर कर लो। मैं 3:25 को आपको वापस फ्री कर रहा हूं, उसके बाद 3:30 बजे आप ये वेबिनार ज्वाइन करोगे, ठीक है? सर गोपाल मैम ने टेक्स्ट किया है कि 3:30 बजे लेक्चर लेंगे वो। कब बताया है?
सर अभी थोड़ी देर पहले। आज मॉर्निंग में फ्री थे आप? तो आपने बताया नहीं क्या हमें 3:30 बजे एक वेबिनार ज्वाइन करना है? हेलो, कुछ देर पहले ही उनका टेक्स्ट आया। तो उनको बताना था ना, हमारा 2:45 बजे का 2:45 का प्रैक्टिकल है। मैंने थोड़ी ही बताया था आपको मैं प्रैक्टिकल नहीं ले रहा हूं करके। हेलो, मैडम को मैसेज भेज दो हमारा 2:45 से प्रैक्टिकल है करके। आप लोग सुन रहे हैं? यस सर। मैडम को Yes, मैसेज sir. भेज दो हमारा 2:45 से प्रैक्टिकल है, सर छोड़ नहीं रहे, वो बता दो, मैसेज कर दो। तब तक आप रजिस्टर कर दो और 3:30 बजे आपको वेबिनार ज्वाइन करना है। मैडम का जब है तब लेने को बता दो मैं ऐसा बोल रहा था करके। ठीक है, मैं 5 मिनट के लिए आपको ब्रेक दे रहा हूँ, आप रजिस्टर कर दो। फिर मैं 3:25 तक ले रहा हूँ और 3:25 के बाद में आपको वेबिनार ज्वाइन करना है। वेबिनार खत्म होने के बाद फिर से प्रैक्टिकल ज्वाइन कर लो। आपका चौथा यूनिट जो है दैट इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और उससे रिलेटेड वेबिनार है। मैंने आप लोगों को आज मॉर्निंग तक नहीं बताया था कि मैं प्रैक्टिकल जल्दी छोड़ रहा हूं या आपको वेबिनार करना है। 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, आप मैडम को मैसेज भेज दो कि सर छोड़ नहीं रहे। आपल्या याच्यात घ्यायचं नाही, दुसऱ्याच्या याच्यात सोच मारायची. बाकी आत्ता सांगितलं काल किंवा सकाळी वगैरे तेच म्हणलं बघा. हेलो, कौन अवेलेबल है? यस सर। हेलो, गोपाल मैडम को टेक्स्ट मैसेज भेज के और बता दो कि कर सकते, बता दो, मैसेज कर दो। सर तिकडे मोदकच खातोस का? गणपती बाप्पा होशील अगोदर जाय पोटात लक्षात ठेव. हा पॅन्ट कशाला? सर असं जाऊन बसलो. म्हणून सांगितलं. कनेक्टिव्हिटी आधी म्हणून मला सकाळपासून लग्न केला म्हणून रात्री येत नव्हती. ते पण केलं. लग्न करायला सांगतो.
2 वाजता केलं असं मी केलं असतं. 2 वाजता केलं असं मी केलं असतं. बरोबर. आंतरराष्ट्रीय पातळी ते खावा आणि पाणी प्या. चला. आणि झोपत नाही वाटतं. नाही बसतो. हेलो हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? यस सर. हाँ, अभी मुझे बता दो, आपने एनाटॉमी के लिए क्या क्या मटेरियल लिख के लिया है? पहला क्या था? हेलो, एनाटॉमिकल स्टडीज के लिए मटेरियल आपने पहला कौन सा लिया था? मेज, सर मेज, कैना, जस्ट मिनट, मेज, कैना, उसके Wheat. बाद में वीट वीट, हाँ, और बोरेविया. कौन सा? बोरेविया, बोराविया, हाँ, बिग्नोनिया, बिग्नोनिया और बिग्नोनिया ड्रेसिनिया. और ट्रेसेना। अब इसमें से मोनोकॉट कितने हैं और डाइकॉट कितने हैं, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? हेलो, मोनोकॉट कितने हैं और डाइकॉट कितने हैं, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? टोटल 6 में से मोनोकॉट कितने हैं और डाइकॉट कितने हैं? हेलो, टोटल आपने 6 लिखे हैं, इसमें से मोनोकॉट कितने हैं और डाइकॉट कितने हैं? सर मोनोकॉट 2 है. कौन कौन से हैं? मेज एंड वीट. नहीं, आप देखो 4 मोनोकॉट है, मेज, कैना, वीट और ड्रेसेना, दे आर मोनोकॉट, और ओनली 2 लिए आपने डाइकॉट, बोराविया और बिग्नोनिया, ठीक है? चलो, रूट का कौन कौन सा मटेरियल लिया बताओ? रूट का मटेरियल कौन कौन सा लिखा है? सीसर. सीसर, टिनोस्पोरा, टिनोस्पोरा, टिनोस्पोरा मतलब कौन सा? गुडुची या गुड़वेल। ओके, नेक्स्ट। बीटा वल्गैरिस, दैट इज बीटरूट. बीटा, हाँ, बीटा वल्गैरिस, और हाँ, नेक्स्ट। सीमेज, Jia maize. मेज 4 ही लिए थे, सही है? यस सर. ओके, और लीप में मटेरियल कौन सा लिया था हमने? मैंगो, Mango leaf. जियामेज एंड नीरियम. मैंगो, मेज और Nerium. नेरियम। यम. अब मैं धीरे धीरे आपको कुछ चीजें बताता हूँ।
जब नॉर्मली हम स्टेम का सेक्शन लेते हैं तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ स्टेम इज नॉर्मली either it is round or rounded or sometimes elongated, and in case of a stem normally section shows epidermis, sometime hypodermis, cortex, then endodermis, pericycle, and teeth is present along with the vascular tissue. Then as far as root considered, in case of a root, normally in a root xylem and phloem are present on the different radius पर रहते हैं, and that's why normally xylem is present toward the center. It gives more mechanical strength. Then as far as leaf considered, leaf are very important, and important function of the leaf is photosynthesis, and that's why in case of a leaf, leaves are either isobilateral or they are bifacial. Bifacial leaves normally observed in case of a dicot, while in case of a monocot, isobilateral leaves are observed. So we have taken two examples from the dicot, that is mango and nerium, and one example of a leaf that is from maize. In case of maize, आपने देखा है presence of puliform cells is a characteristic feature in case of a maize, while in case of mango it is normal dicot leaf, while in case of nerium it shows xerophytic characteristic feature. जो कैरेक्टर मैंने शुरू में बताया था, that is the presence of multiple layered epidermis, it is not normally observed in case of a nerium. So in all we have considered 13 plants for completion of this practical, और इन 13 प्लांट में से मेज इज कॉमन, मेज करीबन सब इसमें मेज है, यस तीनों भी, यानी स्टेम में, रूट में और इसमें है। अगर चाहे तो आप कुकुरबिटा और सनफ्लावर को डाइकॉट स्टेम और रूट में इंक्लूड कर सकते। I again repeat for all of you, you have to complete this practical by using description of these 13. You have to take down the description from your Bendre Kumar's book, page number I have already given to you. Besides that, diagrams are also available on the these successive pages. But I repeat the thing that for practical purpose, it is comparatively difficult to take the section, but as these materials are simple and comparatively larger in the size, you can take the section. लेकिन possible thin section लेना ये skillful work है. Normally after taking a section, you are going to place the material in a wash glass containing water, that is for washing purpose. उसके बाद आप क्या करते हैं, क्लीन स्लाइड पर ड्रॉप ऑफ वाटर ले लेते हैं और इसमें मटेरियल रखते हैं. यू आर गोइंग टू वॉच इट अंडर hand lens or even dissecting microscope so as to observe that whether the section is thick or thin. आपको thin section चाहिए, thick section आपको discard करना है. तो finally you are going to place a drop of safranin. Safranin is normally going to coloring agent or dye which is going to give color to dead and lignified tissues. Safranin हमेशा dead and lignified tissues को कलर देता है. I think you might have gone through double stain technique. क्या इसके पहले आपने डबल स्टेन टेक्निक किया है? हेलो, कहाँ किया था? कौन सा स्टेन दूसरा यूज किया था आप लोगों ने? डबल स्टेन में आपने दूसरा स्टेन कौन सा यूज किया था? हेलो, क्या आप बता सकते दूसरा स्टेन कौन सा यूज किया था? हेलो, डबल स्टेन में आपने दूसरा स्टेन कौन सा यूज किया था? आप बता सकते हैं? सैफ्रानिन और दूसरा स्टेन आपने कौन सा यूज किया था? सर यूसिन। नहीं, यूसिन जूलॉजी में नॉर्मली यूज करते एंड यूसिन इज नॉर्मली कंसीडर्ड एज अ साइटोप्लाज्मिक स्टेन. यूसिन नहीं, मिथिलिन ब्लू नहीं, सर, मिथिलिन ब्लू भी नहीं. नहीं, और दूसरा एनीबडी? दूसरा स्टेन
सैपरेनिन और साथ साथ आपने लाइट ग्रीन या फास्ट ग्रीन यूज किया होगा, इज इट राइट? हेलो, Yes, sir. लाइट ग्रीन या फास्ट ग्रीन? नॉर्मली लाइट ग्रीन और फास्ट ग्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स कलर टू लाइट ग्रीन और फास्ट ग्रीन कलर कौन से टाइप ऑफ टिश्यूज को देता है, ध्यान में रखो। लाइट ग्रीन और फास्ट ग्रीन टिश्यूज यानी लिविंग टिश्यूज को कलर देता है। इज इट क्लियर टू यू? हेलो, लाइट ग्रीन और फास्ट ग्रीन लिविंग टिश्यूज को कलर देता है, और रेड यानी सैफरनिन जो है रेड और डेड और लिग्निफाइड टिश्यूज को कलर देता है। सो वी आर यूजिंग दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेन फॉर एनाटॉमिकल प्रिपरेशंस। अगर नॉर्मल में अपना प्रैक्टिकल होता तो हम सेक्शन लेकर ये कंटिन्यू करते थे। चलो ठीक है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन आपके लिए मैं आज फिर से इसका पोस्ट करता हूँ। अभी आप लोग वेबिनार ज्वाइन करना है, वेबिनार ज्वाइन कर लो। मैं अभी मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, मैं अभी मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान में रखो आपको वेबिनार ज्वाइन करना है। गोपाल मैडम को बता दो, सर का प्रैक्टिकल था, सर ने पहले ही बताया था। ठीक है? हेलो, यस सर। कोई बात Yes, नहीं करना है, ठीक है? अच्छा, हाँ, आप लोगों को अभी वेबिनार ज्वाइन करना है, वेबिनार ज्वाइन Yes. कर लो। गोपाल मैडम को बता दो, कल ले लो, नहीं